Welcome, grade 6. This is chapter number 2 and topic number 3. How is climate change affecting the way people live? Climate का जो change है किस तरह लोगों को affect कर रहा है. Now those people who live near river delta in Bangladesh, they are the most affected people. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा affect हुए हैं. जो हिमालयाज़ के glaciers हैं, they melt and वो फ्लड्स जो हैं वो आसपास की लैंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक कॉम्प्रिहेंशन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए. द स्टोरी इज़ ऑफ अब्दुल हु इज़ 12 ईयर्स ओल्ड. 12 साल का वो बच्चा है. ठीक है, एंड ही टुडे ही इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज वो स्कूल जा रहा है और लास्ट ईयर वो स्कूल नहीं जा सका. वाई? बिकॉज ऑफ द फ्लड्स. इतने ज़्यादा सैलाब आए कि ही couldn't go to school and the condition was very frustrating. उसको बड़ा गुस्सा आता था because he wanted to study, he wanted to be an architect. अब जब उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता था तो वो कंप्लेंट्स करता था. ही ऑफन कंप्लेन्स ऑफ हैविंग नो इलेक्ट्रिसिटी और कार्स. वो कहता था हमारे पास ना बिजली है ना कार्स है, फिर भी वी सफ़र स्टॉर्म्स, वी सफ़र साइक्लोन्स caused by the rich people in other countries. Right now the situation of Pakistan is somehow same, that we are going through a very difficult time. We need to show patience over here, so that because every cloud has a silver lining. आज अगर conditions normal नहीं हैं तो कल आप इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे. You will live the normal life. Okay? तो इस दिन when he was going to school, the day was very different. The school boat आ रही थी. अब उनका स्कूल कैसा था, वो एक बोट में था and school boat was coming. एंड वो जब उसके टाइम से वो दे वर रेडी एन आवर बिफोर, वो 1 घंटा पहले ही तैयार हो गए. दे वर होल्डिंग देयर हैंड्स टुगेदर, वो हाथ पकड़ के इंतज़ार कर रहे थे. दे वर फिजिंग लाइक बॉटल्स ऑफ लेमनेड. वो सोडे की बोतलों की तरह ना फिजिंग कर रहे थे. फिजिंग का मतलब होता है बड़ी खुशी जाहिर करना. ठीक है, जंपिंग अप एंड डाउन. सो स्कूल बोट जो है वो फ्लड के वाटर पर चलते हुए आती है. दे लाइन अप एंड दे गो टू द बोट. देयर वर अराउंड 40 डेस्क एंड 20 बेंचेस. 3 hours passed quickly. 3 hour उन्होंने पढ़ा और they were happy कि वो रोज़ आया करेगी, वो एक दिन के लिए नहीं था. that boat was supposed to come every day now. and 3 hours passed very quickly and when they were coming back they were given solar lamps. ठीक है, for the homework. उनको होमवर्क करने के लिए सोलर लैम्प्स भी दिए गए. बिफोर दैट जो कैरोसिन लैम्प्स थे वो उनको कॉस्टली पड़ते थे, वो उसका पे नहीं कर सकते थे. जो उसका फ्यूल होता है कैरोसिन, मट्टी के तेल के पैसे. ठीक है, और वो एयर को पोल्यूट भी करते थे और उसकी स्मेल भी बहुत बुरी थी. तो नाउ दे हैव सोलर लैम्प, दे कैन स्टडी एंड दे कैन, ही इज़ वेरी होपफुल कि अब मैं एक आर्किटेक्ट बन सकता हूँ. एंड he said that when I'll grow up I'll make more boats like this. Even in boats में ना libraries भी हुआ करती थी. Now there are certain questions of the comprehension. So the first question is, describe some of the problems Abdul had with his schooling before the school boat was introduced. Before the school boat was introduced, he was unable to go school due to flooding. What does Abdul's father blame on rich people in other countries? Abdul के जो father थे वो rich people को क्यों blame करते थे? He blames because of the terrible cyclones and storms caused by the rich people. ठीक है? Then why is the school boat particularly exciting for Maki? Maki was Abdul's youngest sister. ठीक है? छोटी बहन उसकी थी. She was surprised because अब वो इससे ज़्यादा स्कूल मिस नहीं करेगी और वो अब्दुल से छोटी थी. and due to water she wasn't allowed to go to the school last year. ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था. तो लास्ट ईयर अब्दुल तो फिर भी चला जाता था जब वो थोड़ा था, तो पर मक्की बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी. ठीक है. Then next question is, why do you think the 3 years pass so quickly? Because they have so many things to learn and to do in the boat school. What is the benefit of solar lamp for Abdul? It does not need electricity nor kerosene and that is not expensive too. Okay, so that was the happiness for Abdul. You will read out these pages from page 33 to 36. You will answer the questions of comprehension in your notebook and you will just go through with looking closely. You will not write these in the notebook. Which word or phrase could you use that means the same as suffer? Suffer का मतलब होता है endure, have to bear. Okay,
राइट डाउन द सिमिली यूज बाय अब्दुल इन पैराग्राफ नंबर 2. सिमिली का मतलब होता है सिमिलैरिटी शो करना. तो वो कहता है ना कि वी वर फ्रीजिंग लाइक bottles. This one line, fizzing like bottles of lemonade. Okay, then which adverb tell you about the way the children went board to the school? Respectfully मतलब पहले बड़ा फिर छोटा. ठीक है. What does solar powered mean? Solar powered means working by the energy of sun. Which word is the name of the kind of fuel? Fuel का नाम क्या है जो इस पैराग्राफ में यूज हुआ? That is kerosene. Kerosene मतलब मट्टी का तेल. That's all for today. Assalamu alaikum, grade 4. This is unit number 6, matter and materials, last unit of your syllabus. आपको पता है मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं? There are 3 states of matter. The one which is very that cannot change the shape until or unless I do change. ठीक है, जब तक मैं उसकी शेप ना चेंज करूँ तो वो कौन सी शेप होती है? That is solid. फिर सेकेंड स्टेट क्या होती है कि उसको जिस कंटेनर में, बॉटल में डालोगे, कप में डालोगे, ग्लास में डालोगे तो वो उस जैसा ही हो जाएगा. दैट फ्लोज, जो बहता है, दैट इज वाटर. राइट. देन द थर्ड वन इज विच डज नॉट हैव एनी कलर और एनी शेप. समटाइम्स इट हैज सम स्मेल. तो वो कौन सी मैटर की स्टेट होती है? दैट इज गैस. Now the topic is atoms and molecules. Atom क्या होते हैं? Atom basically tiny particles होते हैं. Particle क्या होता है? Particle एक ऐसा word है जो बहुत छोटी चीज़ को बताता है कि सबसे छोटी चीज़, सबसे बेस, एक ज़र्रा जिससे मिलकर बाकी सारी बड़ी चीज़ बनती है. ठीक है. तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है. एटम क्या होता है? बेसिकली उसमें एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये टोटल को हम एटम बोलते हैं. ओके. मॉलिक्यूल क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स साथ ज्वाइन कर जाएं, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है. ये वाटर मॉलिक्यूल है. इसमें 2 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है. 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन. दैट इज वाई द वाटर इज नोन एज H2O. ओके. अब जो मर्जी मैटर हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें पार्टिकल्स ज़रूर होते हैं. ठीक है. और उनकी शेप या कैसे पता चलता है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है? ये इस तरह पता चलता है कि वो कितने टाइटली क्लोज टुगेदर हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड में ये पार्टिकल्स हैं, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ये टाइटली टुगेदर हैं. इसमें टाइटली टुगेदर है. मैं इसको प्रेस करना चाहूँ, ये प्रेस नहीं होंगे. ठीक है. दैट मीन्स इट इज सॉलिड एंड दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन. ये यहाँ पड़ी है, ये नहीं मूव करेगी जब तक कि मैं इसको मूव नहीं करूँगी. अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में थोड़ा सा रूम होता है, थोड़ी सी स्पेस होती है, इसलिए इनको जिस भी कंटेनर में,